parameter and we will write a function that will calculate a to the power b. Means there will be two parameters. This function will receive a and b, and finally it should return the value of a to the power b. Okay. Can anybody tell me the first line of this function? Means function's definitions, header line. Def. Def. F power. You know, the name of the function we can write anything. Okay? Say you are saying that power. Okay. And it will receive two arguments, say a and b. Correct? Is it clearly visible now, this code? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now देखिए, जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि किसी भी रिकर्सिव फंक्शन में, क्योंकि कॉल रिकर्सिव होती है, यानी वो फंक्शन खुद को ही कॉल करता है, तो ये जरूरी है कि वो रिकर्सिव कॉल कहीं ना कहीं खत्म हो जानी चाहिए। तो आप ये बताइए सोच के कि ऐसी क्या कंडीशन होगी जब ये रिकर्सिव कॉल खत्म हो जानी चाहिए? बताओ। अगर आप ये बताओ कि अगर b की वैल्यू 0 हो तो रिजल्ट क्या आएगा a की पावर b का? 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा। ठीक है, मैंने कहा if b equals to 0, then this function should return what? 1. फाइन, इतना समझ में आ गया? जी सर। यस सर। और अगर मान लीजिए कि 1 नहीं है, मतलब 0 नहीं है b की वैल्यू, then we need to calculate something. तो इसका मतलब ये हुआ कि in that case what it should return. अब आप बताइए कोई भी। A डबल एस्टेरिस्क B। डबल एस्टेरिस्क b नहीं। हेलो सर। हाँ बताओ। इसका मतलब ऐसा होगा, ए क्रॉस मतलब ए मल्टीप्लाई रिटर्न ए मल्टीप्लाई पावर ए बी माइनस 1। अच्छा, हाँ, मतलब a से मल्टीप्लाई किया हमने और पावर and called power function with the value a and b reduced by 1. हाँ यही this one ऐसा कुछ। यस। तो इसका मतलब ये हुआ ना, because we need to bring the value of b to 0, तो ये आपकी एक एक करके घटती हुई जानी चाहिए। तो हमने क्या किया कि नेक्स्ट टाइम ये जो फंक्शन कॉल हुआ if b is not equals to 0, तो ये रिटर्न करेगा a into power a comma b minus 1। तो इट सिंपली मीन्स कि ये जो रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, दिस रिटर्न स्टेटमेंट इज गोइंग टू अगेन इन्वोक दिस फंक्शन पावर, and you can see the highlighted portion which I have shown here simply shows you कि if the function goes to else clause, then this is going to return a into power a comma b minus 1.
So simply it says that it is again going to call this power function with the value a and b reduced by 1. Now this simple function should work for us, and let us see how this is going to work. So say if I call this function power by giving some values, say 5, 3, and run it. Sorry, Print. प्रिंट करना पड़ेगा मुझे, प्रिंट बेटा वो नीचे you can see here this output is 125, correct? Is the output visible to you? Here in Yes, the lower window you can see the output. तो देखिए इटरेशन एंड रिकर्सन ये एक जैसे लगते हैं. इटरेशन का मतलब जैसे हमने लूप यूज किया, फॉर लूप यूज किया, व्हाइल लूप यूज किया. तो लूप का काम भी यही होता है कि वो चीजों को रिपीट करता है बार बार. यानी कि हमें लिखना एक बार पड़ता है लेकिन वो कोड रिपीटेशन में एग्जीक्यूट होता है कई बार. अब यहाँ रिकर्सन भी यही कर रहा है. तो whatever we can do with the help of loops, we can do it with the help of recursive functions also. But sometimes writing recursive functions becomes easier, and the code's length can be reduced using recursive functions. आपने फिबोनाची सीरीज के बारे में पढ़ा है? Does anyone of you फिबोनाची सीरीज आपने सुना है ना? बता सकता है कोई? बता सकता है सीरीज क्या होगी वो? सर पिछले लास्ट वाली जो दो होते हैं ना उनका सम करके अगला वाला आ जाता है. हाँ, the sum of previous two terms gives the value of the next term. ये फिबोनाची सीरीज होती है. 0 is the first term, 1 is the second term, then 0 plus 1 equals to 1 is the third term, and 1 plus 1 2 is the fourth term, 2 plus 1 3 is the fifth term. ऐसे मतलब नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए you just add the previous two terms. आप बता सकते हैं कि अगर मुझे nth टर्म अगर प्रिंट करना है, if I want to print nth term of a Fibonacci series, तो उसके लिए अगर हमें एक रिकर्सिव फंक्शन लिखना पड़े तो क्या रिकर्सिव फंक्शन हो सकता है? इस पर अगर हम बात करें, बता सकते हैं आप कि जो टर्मिनेटिंग कंडीशंस हैं वो क्या होनी चाहिए? ये क्लियर है प्रोग्राम? किसी की समझ में अगर नहीं आया हो तो बताओ. ये जो मैंने अभी पावर वाला बताया है आपको, those who were present during the last class, I think they can understand easily. Those who are attending today and do not have a concept of recursions in their mind, they might feel some problems understanding this. सर इसमें b-1 क्यों लिया सर यहाँ पे?
खाना यादव, एम आई राइट? यस सर। खाना Yes, यादव, एक्चुअली देखिए मैंने ये कहा ना कि हमें ये फंक्शन 1 रिटर्न तब करेगा जब b की वैल्यू 0 होगी। अब आप ये समझिए कि मैंने ये कहा 5,3 सिंपली सेज दैट आई वांट टू कैलकुलेट 5 टू द पावर 3। तो 5 टू द पावर 3 का मतलब ये हुआ कि यहाँ b तो 0 है नहीं। तो फर्स्ट टाइम जब ये फंक्शन कॉल होगा जो लिखा है पावर 5,3, तो a की वैल्यू 5 है, b की 3 है। एंड ये जो स्टेटमेंट है इफ b बराबर 0, ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा फर्स्ट टाइम में? बताओ। फॉल्स होगा सर। फॉल्स होगा तो ये रिटर्न 1 जो स्टेटमेंट है दिस इज नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूट। तो व्हाट विल एग्जीक्यूट? द एल्स पार्ट। एल्स पार्ट जो लिखा हुआ है रिटर्न a इंटू पावर a b माइनस 1। तो अगर आप देखें तो ये क्या रिटर्न करेगा? a का मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाई पावर 5 कॉमा और b माइनस 1 कितना हुआ? 2। हाँ, तो ये हो गया पावर 5,2। अब आप ये समझिए पावर 5,2 का मतलब है अगेन हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं 5 और 2 वैल्यू देके। तो इसने ये आंसर अभी रिटर्न नहीं किया, 5 इंटू के बाद ये फंक्शन दोबारा कॉल हो गया और इस बार कॉल हुआ 5,2 इन 2 वैल्यूज के साथ में। तो इस बार जो पावर कॉल हुआ तो a की वैल्यू 5 गई और b की क्या गई? 2। सही है ना? 2 फिर। यस सर। तो फिर ये इसने अपना काम किया, b अभी भी 0 नहीं है, तो फिर इसने रिटर्न किया 5 इंटू पावर a कॉमा b माइनस 1 का मतलब है 2 माइनस 1 0, वो 2 माइनस 1 1। तो नेक्स्ट टाइम इट विल बी 5,1। 5,1 के बाद में ये इट विल बी 5,0। तो जब ये 5,0 हो जाएगा तब b की वैल्यू 0 आएगी, रिटर्न 1 होगा। फिर 1 और 1 रिटर्न होने पर जो प्रीवियस रिटर्न वैल्यूज हैं उनमें 5 इंटू चला, ये a की वैल्यू मल्टीप्लाई होके चली आ रही है। तो ये जो है इस तरह से 5 इंटू 5 कैलकुलेट होके फाइनली द वैल्यू विल बी रिटर्न। चलिए मैं एक और फंक्शन आपके सामने यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। एंड दिस फंक्शन इज फॉर प्रिंटिंग nth टर्म ऑफ ए फिबोनाची सीरीज। तो सपोज करिए मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ फिबोनाची एंड n क्या होगा इसमें? क्या होगा n बताओ? What will be n? मैंने जो लिया है। हेलो, आर यू लिसनिंग? यस सर। यस सर। फर्स्ट टर्म होगा। ये फर्स्ट टर्म नहीं होगा। n जो मैंने लिया है, n मैंने लिया है कि मैं इस फंक्शन को जिस नंबर को सर हमें फाइंड करना है, मैं इस फंक्शन को कॉल करते समय ये बताऊंगा कि कौन सी टर्म मुझे चाहिए फिबोनाची सीरीज की। मैं अगर जैसे कहता हूँ कि आई नीड द थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म हो जाएगी आपकी 1, जैसे 0 1 1। ठीक है। If I say कि I need the fourth term, then it should be 1 plus 1 2। तो अब देखिए यहाँ पर मैं टर्मिनेटिंग कंडीशन की बात कर रहा हूँ अभी। तो if I say कि n is 1 means I need the first term of this Fibonacci series, then what this function should return? Tell me. हाँ,
If n is 1, n One means रहेगा, I sir. need the first term of this series. n is 1 means I need the first term of this series. Then what this function should return? What is the first term of the series? What is the first term of the Fibonacci series? Let me know. 1 1 नहीं n one हो जाएगा सर। नहीं one नहीं. The first term of the series is 0. Because 0 is the first term of. सर n plus n minus 1। नहीं अभी नहीं, अभी if I need the first term, because देखिए मैं फर्स्ट और सेकंड ये दो टर्म जनरेट नहीं कर सकता, बिकॉज फर्स्ट टर्म के पहले कोई दो टर्म है नहीं जिनको मुझे जोड़ना पड़ेगा, और ऐसे ही सेकंड टर्म के पहले भी दो टर्म नहीं है, बिकॉज सेकंड टर्म के पहले एक ही है 0 बस। तो पहली दो टर्म्स को तो मैं जनरेट कर नहीं सकता, उनको तो सीधा सीधा मुझे मालूम ही है कि वो 0 और 1 ही होंगी, फर्स्ट और सेकंड टर्म। लेकिन थर्ड टर्म ऑनवर्ड मैं जनरेट कर सकता हूं बाय एडिंग द प्रीवियस टू टर्म्स। फाइन। तो अभी मैंने ये कहा कि फिबोनाची का पहला वाला 0 होगा या 1 होगा? 0 होता है, फर्स्ट टर्म इज 0। ठीक है, तो अभी मैंने कहा 0, हाँ फर्स्ट टर्म इज 0, सेकंड टर्म इज 1, एंड फिर उसके बाद का आप अपने आप निकाल सकते हैं। हेलो, अच्छा अब मैं देखता हूँ कि एल्स में मुझे एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर एल्स इफ लगाना है तो मैं एल इफ कर देता हूँ इसको, एल इफ n equals to 2, it means if I need the second term of this, then the function should return what it should return, बताइए। अरे सिंपल सी बात है ना कि अगर n बराबर 2 है मीन्स मुझे दूसरा टर्म चाहिए। दूसरा टर्म क्या होगा भाई? पहला तो 0 होता है, दूसरा क्या होता है मैंने बताया नहीं अभी आपको। सेकंड टर्म क्या होता है फिबोनाची सीरीज। हेलो, फिबोनाची सीरीज बेटा मैंने बताई है, आपको समझ में नहीं आई क्या? एनीवन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड let me know whether you are listening to me or not. Yes sir. Yes sir. तो मुझे ये बताइए कि ये जो सेकंड टर्म है, मैंने क्या बताई थी अभी आपको कि सेकंड टर्म क्या होती है? फर्स्ट 1 होगी, 1 होती है ना सिंपली। अभी तो ये इतना बिल्कुल क्वाइट इजी है कि फर्स्ट टर्म 0 है, सेकंड 1 है। तो इफ आई से कि n बराबर 1, मुझे अगर 1 चाहिए, अच्छा अब इसके बाद अगर यूजर ये कह देता है कि n की वैल्यू 3 मान लीजिए, तो इसका मतलब उसे थर्ड टर्म चाहिए, और थर्ड टर्म होगा फर्स्ट और सेकंड टर्म का एडिशन। तो इसमें आपको जो एल्स मैंने यहाँ पे लिखा, द फंक्शन शुड रिटर्न, नाउ व्हाट शुड बी रिटर्न? वी शुड मेक कॉल टू दिस फंक्शन अगेन। तो फिबोनाची n-1 and plus फिबोनाची n-2। जैसे अगर मैंने कहा कि n की वैल्यू 3 है मान लीजिए, सपोज करिए, तो n बराबर 1, n बराबर 2, these two conditions will be false, then it will go to else। तो else में ये रिटर्न करेगा फिबोनाची 2 प्लस फिबोनाची 1।
तो फिबोनाची 2 इस कॉल का रिजल्ट आएगा 1 और फिबोनाची 1 इस कॉल का रिजल्ट आएगा 0। तो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1। इट शुड रिटर्न। नाउ लेट अस सी, एक मान लेते हैं, सपोज करिए I ask the user which term of Fibonacci series do you want to generate. And then I called Fibonacci and gave this value of num here. Print numth term of the series is T. Should I check the result now? These 3 lines are clear. define function में spelling गलत सर। define में अच्छा ये spelling मैंने यस सर। O N यहाँ से हटा दे। It's fine now. Okay, now I'm going to execute this program and see what happens. So you can see in the output window it is asking for which term of Fibonacci series do you want to generate, and say I said 5. Now what will be the 5th term of the series? बताइए जल्दी से। थ्री होगी। अच्छा 7th बताइए, मैं 7 दूंगा। 7th टर्म क्या होगा? एट होगी। 8 सही से बताओ। 8 नहीं होगी। हाँ? 13 नहीं, 7th टर्म 8 ही होगी। 8th टर्म 13 होगी। So now let us see what our program actually gives us. So you can see the 7th term of the series is 8. समझ में आ गया आपके? अच्छा, अगर हमें ये करना हो कि हमें n टर्म्स जनरेट करना है, मतलब अभी तो हमने कहा कि 7th टर्म आप जनरेट करो। अभी हम ये चाहते हैं कि 7 टर्म्स जनरेट करो। 7th नहीं, 7 टर्म्स जनरेट करो। तो उसके लिए देखो, I will made a little change here. Now here मैं which term की जगह ये कह देता हूँ कि how many terms of Fibonacci series do you want to generate? So now num will represent how many terms we will like to generate. तो अभी मैंने क्या किया, एक लूप फॉर्म किया for I in range, and what should be the range? 1, num plus 1. So the loop will be from 1 to, बताइए कोई, ये लूप कहां से कहां तक चलेगा? 1 से 9 तक। 1 to num चलेगा ना।
1 to num. Okay, so for I in range 1 to num, and then I called this t equals to, and printed the value of t along with the commas, so that you can easily identify the terms. Correct. Now let us do this. और ये मुझे नम की जगह क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? I, by giving the value I to this function, run. What is happening? How many terms of Fibonacci series do you want to generate? Say 7 terms we want to generate. अच्छा, ये अभी ऐसे आ गया तो आपको दिखा नहीं है कोड, तो मैं ऊपर करके दिखा देता हूँ। ये देखिए 0 1 1 2 3 और 2 3 के बाद दिख रहा है ना आपको? फिर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अगर मुझे देखिए ऐसे चाहिए एक ही रो में तो क्या करना चाहिए, किसको पता था? बताओ। एंड लगा दो। कहाँ पर लगाऊं? कॉमा, मतलब पहले तो काट दीजिए उसको। हाँ चलिए, ये कर दिया। और यहाँ पर एंड, ये एंड इक्वल्स टू कॉमा, ये सही है? हाँ हाँ, चलो अभी देख लेते हैं। देखो 8 टर्म में सपोज प्रिंट कर रहा हूँ, 88 होगी। You can see the first 8 terms of the series 0 1 1 2 3 5 8 13. Clear? So whatever the value of num you will give here, this program is going to generate those much terms of this series. Fine, I think this is clear to all of you. तो मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, वो आप ट्राई करिएगा यूजिंग दिस रिकर्सिव फंक्शंस, है ना? और वो है कि आपको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मालूम है क्या होता है? हेलो guys, yes sir, do you know what is greatest common divisor? यस सर। yes sir। तो आपको एक रिकर्सिव फंक्शन लिखना है जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कैलकुलेट करेगा। और नेक्स्ट, या फिर आप एक टाइम नंबर चेक करने का आप बनाइएगा कि इफ वी वांट टू नो वेदर ए नंबर इज प्राइम और नॉट, then the function should return us yes it is prime or it is not prime. We have to form a function, recursive function, to find whether a number is prime or not. So either for prime number or greatest common divisor, और सिंपली दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का भी आप बना सकते हैं। इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स, तो उन मल्टीप्लाई के लिए एक रिकर्सिव फंक्शन कैसे बनेगा? इफ वी
we give two values to the function, then it should return the multiplication of those two. तो वैसे तो सिंपल है कि अगर हम कोई नॉर्मल फंक्शन बनाएंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए तो जस्ट पास टू पैरामीटर्स एंड रिटर्न a into b if a and b are the parameters. But we want to do it using a recursive function. It should be a tricky one. Okay, you can try. And on the next हो जाएगा, हो गया। हाँ हो जाएगा। you are intelligent people, I know, सभी कर लेंगे आप। और in the next class I will take data file handling. उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन अभी दे रहा हूँ कि डेटा फाइल हैंडलिंग जो हमारा होता है, अभी तक हमने देखा कि हम जो भी प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें जो भी डेटा इनपुट के रूप में हम अगर फीड कर रहे हैं तो वो हमारे पास इनपुट वैल्यूज केवल अवेलेबल तब तक रहती हैं जब तक कि हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फेज में है। As soon as our program's execution stops, the values that we entered during the program execution get lost. लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि अगर हम कोई सॉफ्टवेयर मान लीजिए बनाएं और उस सॉफ्टवेयर में सबसे पहला काम यही होता है कि डेटा फीड किया जाता है। सपोज फॉर एग्जांपल बेटा ये किसी का माइक प्रॉब्लम कर रहा है आपका, ठीक है, उसको थोड़ा सा सही करिए, यहाँ तो बंद कर दीजिए। तो जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर है, जैसे फॉर एग्जांपल से वी मैनेज टू मेक अ लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर फॉर लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी वर्क तब करेगा जब वी हैव टू इनपुट द डिटेल्स ऑफ द बुक्स अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, और वो डिटेल्स जब पहले फीड कर दी जाएंगी तब उस डेटा पे वर्क किया जाएगा। तब हम उस सॉफ्टवेयर से ये कह सकते हैं कि हाँ भाई ढूंढ के बता कि ये बुक है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड हैव द डेटाबेस। तो हाउ वी कैन स्टोर द डेटा परमानेंटली इन पाइथन? Every language supports some mechanism for storing the data permanently. How can do it in Python? We will discuss in the next class. ठीक है? तो हम क्या कर सकते हैं कि जो भी डेटा एंट्री करेंगे वो एक फाइल के रूप में परमानेंटली हमारी हार्ड डिस्क पे स्टोर हो जाएगा। हम कभी भी उस फाइल को पाइथन प्रोग्राम के थ्रू रीड कर सकते हैं और उस डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं एनी टाइम। फाइन। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस दिस टॉपिक, डेटा फाइल हैंडलिंग। Quite easy it is as compared to some other languages. You will be easily able to understand all this, and some people are joining right now.